Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome dear students. How are you? Hope so you will be fine. Introduction lecture number 3 class 7 subject computer studies subject teacher Ma'am Iram Salim. The Smart School Peshawar Gulbahar campus and Canal Town campus. Dear students, as you know that we have started a series of recorded lectures and we hope so that you will be following our instructions by doing your classwork and homework online with computers. Book 7, this is your computer book, so take out your books. Unit number 1 computer software, page number 8. Okay students, we have started unit number 1 and we have done reading of page number 5, 6, 7 in our previous lectures. Today we will continue from page number 8. So open page number 8 of your computer book. But before starting our new lesson, let us discuss the previous lesson also. We have discussed two types of softwares. The one is system software and the other is application software. After that we have studied about operating system, the tasks performed by operating system and different types of operating systems also. We have studied utility programs, we have studied low level languages and high level languages and the difference between low level language and high level languages. Today we will continue from page number 8. So look at your books carefully, mention date, classwork and day. Some of the popular and commonly used programming languages are as follows. Fortran, formula translation. Fortran is one of the oldest high-level language developed by John Backus and IBM in 1957. It is mainly used for scientific and mathematical based problems. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस आपको गिवन है, कुछ लैंग्वेजेस के नेम्स आपको गिवन है. ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर पे टाइप की जाती हैं. इट मीन्स कि ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम प्रोग्राम्स लिखते हैं. हम नहीं, मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया होता है, वो इन लैंग्वेजेस की हेल्प लेकर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स राइट करते हैं जो कि कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके बाद कंप्यूटर हमें एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दे सकता है, लाइक कोई गेम क्रिएट करके दे सकता है बाय विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोग्राम्स रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. फोर्ट्रान का मतलब है फार्मूला ट्रांसलेशन और ये सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको जॉन बेकस ने और IBM ने डेवलप किया था 1957 में. ये लैंग्वेज जो है मोस्टली साइंटिफिक और मैथमेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो मैथमेटिकल और जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं या उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है. Number 2, COBOL, Common Business Oriented Language. COBOL was developed by Grace Hopper in 1959. It is mainly used for business data processing applications. COBOL next language है जिसकी एब्रीविएशन है Common Business Oriented Language. COBOL को ग्रेस हॉपर ने 1959 में डेवलप किया था और ये बिज़नेस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उन एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ होती है. ठीक है, जो बिज़नेस डेटा होता है मोस्टली उसकी प्रोसेसिंग, उन एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. नंबर 3, बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. Basic is a simple and widely used programming language. It is mainly used as a teaching language. Basic की abbreviation है Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. Basic एक simply और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज ये एक टीचिंग लैंग्वेज करार दी गई है या इसको एक टीचिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है बिकॉज़ इसके थ्रू आप लोग, अगर जो बिगिनर्स हैं, जो मतलब जिनको लैंग्वेजेस का यूज़ नहीं आता, तो उनके लिए ये एक टीचिंग लैंग्वेज है. Pascal is a programming language used mainly in scientific and file processing application. Pascal एक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि साइंटिफिक और फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है. ठीक है. C, the other is C language. C was developed by Dennis Ritchie between 1969 and 1973.
It is a general purpose programming language having some of the features of the assembly language. It is mainly used in developing application software and programs. सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया था 1969 और 1973 के बीच में। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके कुछ फीचर्स बिल्कुल असेंबली लैंग्वेज की तरह हैं। इसके अलावा ये लैंग्वेज जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। Number 6, C++. C++ contains most of the features of the C language. It is an object-oriented programming language used in developing system software. C++ लैंग्वेज जो है इसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो C लैंग्वेज के पाए जाते हैं और C++ लैंग्वेज जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करने के लिए। यानी जो आप लोगों को अक्सर ऐप्स नज़र आती हैं या जो गेम्स वगैरह आप लोग प्ले करते हैं कंप्यूटर पे, एक्चुअली ये इन लैंग्वेजेस के थ्रू ही बनाए गए होते हैं, डेवलप किए गए होते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं हैं, ठीक है, हम प्रोग्रामर्स नहीं हैं। ये काम जो है ये सिर्फ प्रोग्रामर्स ही कर सकते हैं या जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं उनको इसके बारे में बहुत नॉलेज होती है। हम इसको जस्ट रीड कर सकते हैं। Number 7, Java. Java is an object-oriented platform-independent language. It was developed by James A. Gosling, who is known as the father of Java programming language. Java is used in creating web pages. Java एक another object-oriented language है। ये platform independent language है। It means कि आप इसको किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। ये independent language है, dependent नहीं है। जेम्स ए गॉसलिंग ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था जिसको फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है और जावा को वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह आपको वेब पेजेस नज़र आते हैं ना, किसी भी वेब ब्राउज़र के जो पेजेस होते हैं तो एक्चुअली ये इन्हीं लैंग्वेजेस के थ्रू क्रिएट हुए हैं। नंबर 8, NET. The NET framework .NET framework is a software developed by Microsoft that runs on Microsoft Windows. This is mainly used nowadays in designing web applications, database connectivity and network communications. .NET एक सॉफ्टवेयर का एक फ्रेमवर्क है। .NET एक फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और ये जो है सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर रन करता है, ठीक है, उस पर ये काम करता है। आजकल इस सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर वेब एप्लीकेशंस की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए और नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। PHP is a general purpose scripting very high level language made for web development to produce web pages. PHP is known as hypertext preprocessor. PHP जो है वो एक जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग मतलब बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि वेब की डेवलपमेंट को या वेब पेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। जो इंटरनेट पे आप लोग वेब ब्राउज़र्स ओपन करते हैं ना, फिर उसमें आपके पास जो वेब पेजेस होते हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है, उनकी जो डेवलपमेंट होती है, उस सब को मेंटेन करने के लिए PHP को यूज़ किया जाता है लैंग्वेज को, और इस लैंग्वेज को हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी कहा जाता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की एडवांटेजेस देख लेते हैं, उसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं कि उसके फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1, इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू इंग्लिश विच मेक्स हाई लेवल लैंग्वेजेस ईजी टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो बिल्कुल इंग्लिश स्टेटमेंट्स से रिलेट करती हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझना आसान है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, बिकॉज दे आर इन बाइनरी कोड्स और निमोनिक्स। नंबर 2, इट इज़ ईजी टू राइट करेक्ट एंड टेस्ट प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स राइट हुए होते हैं उनको टेस्ट करना, उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करना और उनको राइट करना, ये बहुत ही इजी होता है क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल होते हैं और सिंपल होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होते। नंबर 3, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं
वो ईज़िली हर कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, मींस प्रोसेसिंग उनकी हो सकती है, मतलब उसके लिए कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, वो हर तरह के कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 9, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या हैं? A language processor is also known as a language translator. As you know, computer programs are written in high-level languages, but the computer understands only the machine language. Thus, a translator software is used to convert the high-level language codes to machine language codes. When a program is fed into the computer, language translator automatically converts the program into machine language and checks its syntax for errors. There are three types of language translators. Let us study about these translators. ओके स्टूडेंट्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो है वो एक्चुअली लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं, जो कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? जस्ट मशीन लैंग्वेज को। इसीलिए एक ट्रांसलेटर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। इसी तरह जब कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, इंटर किया जाता है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड्स में, और उसके बाद उसके एरर्स को चेक करता है कि कोई अगर मिस्टेक हुई है लैंग्वेज को राइट करने में तो वो आपको फिर एरर शो करता है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स हैं, अभी उनको स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आपके पास अगर 2 बंदे हैं, ठीक है, और एक बंदा जो है वो चाइनीज़ बोल रहा है, एक बंदा जो है वो उर्दू बोल रहा है, तो जो बंदा उर्दू बोलेगा तो उसको चाइनीज़ वाले की ज़ुबान समझ नहीं आएगी, और जो चाइनीज़ बोल रहा है उसको उर्दू समझ में नहीं आएगी। तो वो दोनों बंदे आपस में कैसे बात करेंगे और कैसे एक दूसरे की बात को समझेंगे? तो उसका ये हल है कि हम किसी तीसरे बंदे को बीच में लेकर आएँ, और वो भी कोई ऐसा बंदा हो जिसको चाइनीज़ भी बोलने आती हो और जिसको उर्दू भी बोलने आती हो। तो वो क्या काम करेगा? वो ट्रांसलेटर का काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बंदा उर्दू में बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन उस बात को चाइनीज़ में कन्वर्ट करके चाइनीज़ वाले बंदे को बताएगा, और फिर चाइनीज़ वाला बंदा जब चाइनीज़ में उससे बात करेगा तो वो उसको उर्दू में कन्वर्ट करके उर्दू वाले बंदे को उसकी बात बताएगा। तो इस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सेम लाइक दिस प्रोसीजर इज़ ऑल्सो अप्लाई ऑन कंप्यूटर में भी इसी तरह होता है कि हम ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट इट? नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। अब इन ट्रांसलेटर्स को रीड करते हैं। Assembler. An assembler is a software that converts the assembly language instructions into the right machine codes. Assembler एक language translator है, एक software है जो कि assembly language के instructions को machine codes में convert करता है। Interpreter. An interpreter is a software that converts the high-level program codes into machine language. It translates the high-level language program line by line. A line is translated, executed, and then it moves to the next line. If an error is found on any line, it is reported to the user and the execution of the program is stopped. Okay. इंटरप्रीटर भी एक ट्रांसलेटर है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल प्रोग्राम कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ सिंगल लाइन को ट्रांसलेट करता है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पैराग्राफ राइट किया है, तो जब तक ये ट्रांसलेटर फर्स्ट लाइन को ट्रांसलेट नहीं करता तो तब तक वो नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाता। इट मीन्स कि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। जब ये एक लाइन की ट्रांसलेटिंग करता है तो उसमें से अगर कोई एरर निकलता है, कोई मिस्टेक होती है, तो कंप्यूटर की जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, वो आगे प्रोसीड नहीं होती, और वो आपको एरर शो करता है कि यहाँ पर एरर है, आप इसको ठीक करें ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो सके। तो इंटरप्रीटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है।
Compiler. A compiler also converts the high-level language programs into the machine language. It converts the complete high-level language program into machine code in one go. If any error is found, the whole program has to be recompiled again. कंपाइलर जो है वो भी यही सेम काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसका ये डिफरेंस है कि ये पूरे के पूरे हाई लेवल प्रोग्राम को एक ही गो में कन्वर्ट कर देता है। एक ही गो का मतलब ये हुआ कि फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में ट्रांसलेट करके उसको सेंड कर देता है, ठीक है, एक ही दफ़ा में, यानी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन नहीं होती कंपाइलर में। और इसकी वजह से ये होता है, ये नुकसान होता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर निकल आए, कोई मिस्टेक निकल आए, तो आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोग्राम दोबारा से राइट करना पड़ेगा और उसको अगेन जो है रिकम्पाइल करना पड़ेगा। तो ये थे आपके 3 ट्रांसलेटर्स। नीचे आपको कंपैरिजन गिवन है तीनों ट्रांसलेटर्स का, उससे आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। Assembler written for a particular hardware, compiler written for a particular language, interpreter written for a particular language. Assembler जो है वो एक ख़ास हार्डवेयर के लिए जो है राइट करता है। कंपाइलर जो है वो भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट किया होता है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रीटर भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। Assembler converts assembly language into machine language. Compiler converts high level language into machine language. Interpreter converts high level language into some form of intermediate language. Assembler जो है वो जस्ट असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रीटर हाई लेवल लैंग्वेज को किसी तरह से किसी भी फॉर्म में इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। Assembler translates the entire program before running. Compiler translates the entire program before running. Interpreter translates the program line by line until completed or error is found. Assembler पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में ट्रांसलेट करता है, कंप्लीट। कंपाइलर भी पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में ट्रांसलेट करता है, कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इंटरप्रेटर में ये डिफरेंस है कि वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है, और अगर जब तक कोई एरर नहीं आता या लाइन फिनिश नहीं हो जाती तब तक वो नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाता। तो ये था आपका कंपैरिजन तीनों ट्रांसलेटर्स का। यू हैव टू रिवाइज ऑल द यूनिट फ्रॉम स्टार्ट अप टू पेज नंबर 9। नाउ कमिंग टू द क्लास वर्क की तरफ आते हैं। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 in our previous lectures. Today we will continue from question number 7. अगर आपके प्रीवियस क्वेश्चन के नीचे स्पेस है तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज। मेंशन डेट, क्लास वर्क एंड डे, आज की डेट और डे मेंशन करनी है। ड्रॉ मार्जिन लाइन एंड ऑल्सो एंडिंग लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन, after finishing each question. Question number 7, what are the different tasks performed by an operating system? Explain in brief. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा टास्क परफॉर्म करता है, शॉर्टली उसको एक्सप्लेन करें। आंसर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क। नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल इट एलोकेट्स मेमोरी एंड CPU टाइम टू द टास्क currently being executed. Number 2, operating system manage the transfer of data to and from various peripherals such as keyboard, mouse, scanner and printer. Number 3, operating system manage the system security and performance. Ending line, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग रीड कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है कि कौन से डेटा को मेमोरी में कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, और CPU को एक टास्क को कितना टाइम देना है और उसमें उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम भी मैनेज करता है, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो इंफॉर्मेशन सेंड होती है उसको मैनेज करना। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी और उसकी परफॉर्मेंस को भी मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स? मेंशन एनी 4 यूटिलिटीज़ एंड डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस। कोई से 4 यूटिलिटीज़ को मेंशन करना है और डिस्कस करना है, और यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या है उसके बारे में भी बताना है।
यूटिलिटी प्रोग्राम आपने हेडिंग देनी है, उसको अंडरलाइन करना है। यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इम्प्रूव्स द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम by providing additional and specialized functionality to it. Some of the popular utilities are as follows. यूटिलिटी प्रोग्राम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करता है बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनैलिटी. Number 1, backup utility. It allows us to take the backup copy of data or information on a disk. बैकअप यूटिलिटी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को की कॉपी का बैकअप कर सकते हैं. नंबर 2, एंटीवायरस. इट स्कैन्स फॉर कंप्यूटर वायरसेस. एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है, स्कैन करता है. नंबर 3, डेटा कंप्रेशन. इट कैन कंप्रेस द कंटेंट्स ऑफ अ डिस्क. डेटा कंप्रेशन में हमारे पास कंटेंट्स जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं डिस्क पे. नंबर 4, नेटवर्क यूटिलिटीज़. इट एनालाइजेज द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी. ये कंप्यूटर नेटवर्क की कनेक्टिविटी को एनालाइज करता है, उसका तज्जिया करता है. आफ्टर दैट एंडिंग लाइन आप लोगों ने इसी तरह से हेडिंग्स देनी है और उनको अंडरलाइन करना है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस. आपने एडवांटेजेस बताने हैं, हम लोग अभी रीड कर चुके हैं. आंसर एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस. आपने हेडिंग देनी है. After that, number 1, high level language is easy to understand. It is easy to write, correct and test programs written in high level language. Number 3, programs written in high level languages can be executed by different computers. हाई लेवल लैंग्वेजेस के अभी हम लोगों ने एडवांटेजेस पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को पता होने चाहिए. होमवर्क. डू एक्सरसाइज C. टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग ones on book page number 11. Open book page number 11. Mention date, homework and day. Sorry, I have wrote by mistake date. आप लोगों ने यहाँ पे day ही mention करना है. Question. Exercise C. Tick the correct and cross the wrong ones. Number 1, COBOL is used as a teaching language. COBOL को as a teaching language यूज़ किया जाता है. No, this is wrong. आपने cross लगाना है. Number 2, a compiler converts the high level language प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. कंपाइलर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन नहीं करता. क्रॉस. नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. येस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. टिक. नंबर 4, C++ एंड जावा आर हाई लेवल लैंग्वेजेस. येस, दैट इज़ करेक्ट. टिक. नंबर 5, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स आर यूजलेस. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर्स यूजलेस हैं, तो आपने टिक मार्क करना है, ऐसा ही है. Number 6, electronic spreadsheets helps in accounting and financial task. Electronic spreadsheets it means MS Excel जो है उसको हम accounting और financial tasks के लिए यूज़ करते हैं. That is correct. तो आपने tick mark करना है. Okay students, this is your homework and you should do your classwork and homework as well. Dear students, hope so you will try to understand all those things that I have explained to you, and you should do your classwork and homework tidily and properly. Your writing should be neat. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.